Hello everyone. Today's our topic is redox reactions and electrode potential. You know that in the first lecture of redox reaction, you must be remember I told you displacement reactions can also be looked upon as redox reactions. So there was one example of such a kind of a reaction I have given to you, that zinc solid reacts with Cu2 plus aqueous. It gives Cu solid and Zn2 plus aqueous. So this is the example of that kind of displacement reaction. Actually, this equation is nothing but the equation of the Daniell cell. Daniell cell also works on the principle of redox reaction. We will now see how its working takes place. Okay, so you know that in case of a zinc here, if you see properly, there will be 0 as oxidation number. In case of copper there is a +2, and in case of copper here is 0 क्योंकि यहाँ पे वो है अनकम्बाइंड फॉर्म में, और यहाँ पे जिंक का है +2 एज ऑक्सीडेशन स्टेट. इफ यू सी इट प्रॉपरली 0 से हुआ है +2, सो इधर हुआ है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. सो मैं यहाँ पे कहूंगा कि जिंक इज गेट ऑक्सीडाइज टू Zn2 plus. At the same time, if you see for copper, कॉपर का पहले +2 था और अब है 0, तो यहाँ पे हुआ है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड यू नो दैट इज नथिंग बट नोन एज रिडक्शन रिएक्शन. So I will say this is nothing but an example of a redox reaction which occurs during the working of Daniell cell. Okay, because यहाँ पे क्या हो रहा है, zinc is get oxidized to Zn2 plus and Cu2 plus ions they get reduced to copper. Okay, now it's very important to learn about the Daniell cell. Daniell cell actually a kind of a cell. It is I have drawn the diagram of Daniell cell in front of you. If you see properly, Daniell cell के मतलब Daniell cell में होते हैं 2 हाफ सेल्स. हाफ सेल का मतलब जानते हो क्या होता है? हाफ सेल का मतलब होता है whenever any metal rod it is deep in the solution of its own ions, or I will say in the solution of its salt. For example, zinc rod. Suppose zinc rod deep in the solution of zinc sulfate. देखिए यहाँ पे जिंक रॉड है और हमने इसको अभी डीप करके रखा है कहाँ पे, उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज अ जिंक हाफ सेल. दिस इज कॉल्ड एज जिंक हाफ सेल. एंड एट द सेम टाइम कॉपर रॉड इज डीप इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड इट इज नथिंग बट नोन एज अ कॉपर हाफ सेल. आप अगर यहाँ पे देख लोगे प्रॉपरली तो आपको समझ में आएगा. तो यहाँ पे ये है जिंक रॉड एंड इट इज डीप इन द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सॉल्ट सॉल्यूशन. ओके, जिंक रॉड डीप इन द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट और एनी जिंक सॉल्ट सॉल्यूशन. दिस इज नथिंग बट नोन एज अ जिंक हाफ सेल. एंड इन केस ऑफ अ Daniell cell, इफ यू सी zinc half cell, it work as anode. Remember, there are always 2 electrodes are present in case of electrochemical cells. Cells क्या होते हैं? cells, they are the device which can convert electrical energy into chemical energy or chemical energy into electrical energy. इसके बारे में हम डीप में जाएंगे नेक्स्ट ईयर में. फिलहाल जो भी हमारे सिलेबस में है 11th सिलेबस में हम वही यहाँ पे देखेंगे. तो फिलहाल यहाँ पे आपको ध्यान में रखने का है, जिंक रॉड डीप इन द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट और जिंक सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज अ जिंक हाफ सेल. एट द सेम टाइम कॉपर रॉड डीप इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड एज कॉपर हाफ सेल. ठीक है,
तो इस तरीके से यहां पे होंगे दो हाफ सेल्स, जिंक हाफ सेल एज वेल एज कॉपर हाफ सेल। यहां पे कॉपर हाफ सेल जो है इट विल वर्क एज अ कैथोड। ओके, नाउ these two half cells, if you see properly, they are connected externally by the help of metallic wire, और ये है वो metallic wire। देखिए ये है जिंक रॉड, इट इज डीप इन द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। ये हो गया जिंक हाफ सेल, ये हो गया कॉपर हाफ सेल। ये दोनों हाफ सेल जो है दे आर कनेक्टेड एक्सटर्नली बाय द हेल्प ऑफ मेटेलिक वायर, और बीच में ये दिख रहा है आपको, ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, it will show the deflection when current will pass through it, so it just gives us information whether current is flowing through the wire or not. Okay, at the same time these two half cells, they are connected internally through the help of this salt bridge। देखिए ये है, दिख रहा है ना आपको, ये है सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पे होगा आयंस का फ्लो, आयंस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल you should know about salt bridge। क्या होता है salt bridge? So if you see the salt bridge is nothing but is U-shaped glass tube, you can say it's a U-shape, it is placed in the invert position। Salt bridge is nothing but a U-shaped glass tube in which there is the presence of KCl और KNO3, KCl, KNO3 और NH4NO3, ठीक है, या फिर KNO3, कोई भी यहाँ पे सॉल्ट चलेगा। KCl और NH4NO3 यहाँ पे दिया है, चलो हम यहाँ पे वही लेंगे। सो यहाँ पे वो सॉल्ट रहेगा, I told you like KCl और NH4Cl या फिर KNO3 एंड NH4NO3, इनमें से कोई भी एक सॉल्ट, प्लस यहां पे रहेगा agar, agar gel। agar is a kind of white color substance। okay, it's a white color substance, somewhat amorphous, जो नहीं होता है crystalline, वो होता है amorphous। you know that it is nothing but amorphous substance। so ये होता है agar gel। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है ये सॉल्ट ब्रिज में प्रेजेंट होगा। ओके, सो सॉल्ट ब्रिज का ये होता है कंस्ट्रक्शन, और सॉल्ट ब्रिज के दोनों एंड्स के पास होता है ग्लास वुल लाइक मटेरियल, इट जस्ट लाइक अ कॉटन, यू नो दैट। ये इसलिए यहाँ पे रखा है ताकि इसमें से जो भी कंटेंट है वो नीचे ना आए, इसलिए उसको हम लोग पैक करके रखते हैं। सो ये होता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का जो यहाँ पे फंक्शंस है वो नंबर है एक, सॉल्ट ब्रिज अलाउज द आयंस टू फ्लो। यस, सॉल्ट ब्रिज अलाउज द आयंस टू फ्लो थ्रू इट। Point number 2 I will say here, salt bridge avoids the mixing of the two solutions। देखिए ये डैनियल सेल जैसे हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्ट, अगर ये जो दो सॉल्यूशंस अगर मिक्स होते हैं तो ये डैनियल सेल अपना काम करना बंद कर देगा। सो सॉल्ट ब्रिज अवॉइड्स द मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशंस। इट आल्सो मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इट आल्सो मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब क्या है, किसी भी एक हाफ सेल में किसी भी एक पर्टिकुलर आयन का, चाहे वो कैटायन हो या फिर एनायन हो, इसका ज्यादा नहीं होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन। टोटल नंबर ऑफ कैटायंस शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एनायंस, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलिटी। सो सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बिटवीन द टू हाफ सेल्स। ओके, सो इस तरीके से हम लोग सॉल्ट ब्रिज के जो भी है फंक्शंस कह सकते हैं वन बाय वन। ओके, सो नंबर 1, salt bridge yes allows ions to flow from one half cell into half cell, or I will say salt bridge allows the ions to flow from it, then it avoids the mixing of the solution. At the same time it also yes maintains electrical neutrality in the two half cells. So in this way these are the functions of the salt bridge. तो ओवरऑल डैनियल सेल कुछ हम इस तरीके से करते हैं कंस्ट्रक्ट।
अभी डैनियल सेल में क्या होता है असल में। नाउ सी, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको जिंक वाला हाफ सेल, मैं अभी इस जिंक वाला हाफ सेल को दिखाता हूं कुछ इस तरीके से। यह है इसका साइन कन्वेंशन। जिंक रॉड, देखिए जिंक रॉड जो कि होता है सॉलिड फॉर्म में, इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ, सो यहां पे मैंने लिखा है सिंगल वर्टिकल लाइन, इसका मतलब होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट विथ Zn2 प्लस आयन। यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है आपका टेक्स्ट बुक में कि यहाँ पे ZnSO4 है या नहीं, मोस्टली इट्स अ ZnSO4, अदरवाइज चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ आयंस, तो ये हो गया यहाँ पे जिंक हाफ सेल। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज रेडॉक्स कपल, दिस इज कॉल्ड एज रेडॉक्स कपल, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पे दिया है कॉपर रॉड जो कि है सॉलिड, इट इज डीप इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, या फिर मैं यहाँ पे बस लिखता हूँ Cu2 प्लस आयंस, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉपर का दूसरा और एक रेडॉक्स कपल, यस। तो इस तरीके से हम लोग सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डैनियल सेल के बारे में कह सकते हैं। नाउ सी एक्चुअली हाउ द वर्किंग ऑफ डैनियल सेल टेक्स प्लेस। जो यहाँ पे है जिंक हाफ सेल, ये जिंक के जो भी है आई मीन जिंक रॉड जो यहाँ पे जो है, इट विल लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Zn2 प्लस आयंस। यू नो दैट एट द एनोड, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, एनोड पे हमेशा होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हमेशा होगा रिडक्शन। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, सो एट एनोड आई विल राइट द रिएक्शन लाइक zinc which is solid, it will lose 2 electrons, there is a formation of Zn2 plus ions which are nothing but aqueous। क्या हुआ है यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लॉस किए। नाउ क्या होता है देखिए आगे, जैसे ही यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, मतलब एक एटम जिंक का 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और वो इलेक्ट्रॉन देखिए यहां से फिर फ्लो होना शुरू कर देंगे। दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स यस कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसे बहुत सारे एटम वहां पे रहेंगे और वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करना शुरू कर देंगे और वो कहां पे आएंगे, वो आएंगे कैथोड पे, ओके। और जो भी यहाँ पे Zn2 प्लस के आयंस है, Zn2 प्लस आयंस, they will go in the solution, Zn2 plus ions, they will go in the solution, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो एनोड है इसका, इस रॉड का चार्ज होगा नेगेटिव, कैथोड का यहाँ पे जो चार्ज है वो है पॉजिटिव। You know, electrons, they are having negative charge, so they will migrate towards yes positively charged copper। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मैं इसे कहूंगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सो इलेक्ट्रॉन्स दे विल गो from this yes voltmeter and it will, I mean they will go towards the cathode। You know that the flow of electrons, आपने 10th में पढ़ा होगा in the chapter current electricity, the flow of electrons is nothing but the flow of electric current, but the direction of flow of electrons is reverse of the direction of flow of electric current। Electrons, they will flow from negative end to the positive end, but electric current का जो होता है डायरेक्शन, इट इज टेकन एज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर, सॉरी डोंट हैव टू फॉरगेट, ओके। सो इलेक्ट्रॉन्स दे विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड, बट
the direction of, or I will say conventional direction of electric current is always from the positive end to the negative end. ठीक है, अभी ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, ठीक है, यहां पे आने के बाद क्या होगा, देखिए कॉपर पे, आई मीन एट द कैथोड. सो एट कैथोड लुक एट दिस, क्या होगा, कैथोड में जो भी है, मतलब देखिए यहाँ पे जो है सॉल्ट सॉल्यूशन, दिस सॉल्ट सॉल्यूशन, एक्सक्यूज मी, यस, दिस सॉल्ट सॉल्यूशन इट हैज लॉट्स ऑफ Cu2+ आयंस. सॉल्यूशन में बहुत सारे Cu2+ के आयंस रहेंगे. तो ये जो है Cu2+ के आयंस जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ यस न्यूट्रल कॉपर. तो मैं ये कहूंगा Cu2+ आयंस दे गेट डिस्चार्ज एट द कैथोड. डिस्चार्ज का मतलब पहले यहां पे चार्ज था, अब कॉपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज हो गया वो. सो ओके, दैट्स व्हाई इट नोन एज अ Cu2+ आयंस दे गेट डिस्चार्ज एट द कैथोड. वहां पे जो रिएक्शन होगा ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन. दो यहाँ पे है चार्जेस, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन. इस तरीके से यहाँ पे कॉपर रॉड क्या हो जाएगा, कॉपर के एटम्स हो जाएंगे डिपॉजिट. सो यू नो दैट द साइज ऑफ द कॉपर इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग लाइक दिस. द साइज ऑफ द कॉपर इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग, आई एम सॉरी इंक्रीजिंग. एंड द साइज ऑफ द जिंक, जिंक का जो साइज है यहाँ पे इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि जिंक के आयंस जो एक्चुअली सॉल्यूशन में पास हो रहे हैं, तो इसका साइज यहाँ पे आपको कम होता हुआ दिखाई देगा और कॉपर का जो साइज है ये आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा. सो देखिए इस तरीके से यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होता है. अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो क्या हमें मिलेगा, yes zinc solid, yes then Cu2+ aqueous, 2 electrons they will get cancelled, then there is a formation of yes Zn2+ which are nothing but aqueous and Cu ये है यहाँ पे. For Cu just write, you have to write the S only, S for solid. देखिए वही रिएक्शन यहाँ पे हुआ. इस तरीके से डैनियल सेल का काम चलता है. ओके, डैनियल सेल वर्क इन दिस वे. सो वी कैन से हियर नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू सी, इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. बट बिफोर दिस आई विल suggest you to write all these things properly in your notebook so that I can proceed for our next topic. Okay, now the next point is here we have to see the concept of electrode potential, and now see the points carefully, it's very important for us. Next year we have a chapter electrochemistry. It's very important in the physical chemistry part. So इसके लिए ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. So first of all हम देखेंगे ये concepts क्या होते हैं. What is the definition of electrode? क्या होता है इलेक्ट्रोड. देखा हमने कि यहाँ पे है कॉपर इलेक्ट्रोड, ये है जिंक इलेक्ट्रोड. क्या होते हैं, सो द surface at which either oxidation or reduction takes place is called electrode. It's called as electrode. Now the next point is here. देखिए the next point is here, electrode potential.
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे जिंक के बारे में अगर हम सोचेंगे तो क्या हुआ जिंक पे, जिंक रॉड इट हैज टेंडेंसी टू गो इन द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ आयंस, लीविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स उसने लॉस कर दिए। इस टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? तो मैं यहां पे इन शॉर्ट कहूंगा जिंक पे इधर जो होता है वो होता है डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन ये कहां पे होता है? जिंक के ऊपर होता है, क्योंकि हमें पता है यहां पे जो रिएक्शन हुआ वो है जिंक सॉलिड, it will lose 2 electrons, then there is a formation of Zn2 plus aqueous ions। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लॉस हुए तो यहाँ पे होता है डी इलेक्ट्रोनेशन। डी मीन्स टू रिमूव। ओके, तो ऐसे में जो रॉड आपको दिखाई दे रहा है वो जो रॉड कैसा है? रॉड इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, और जितने भी उसने लॉस किए आयंस they will be present in the solution। so यहां पे है positively charged ions। yes, देखिए आप जानते होंगे क्या होता है कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। कैन यू टेल मी क्या होता है पोटेंशियल? पोटेंशियल इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक लेवल। यू नो दैट इफ सपोज इमेजिन देयर आर 2 tanks are placed like this, और समझो यहां पे ये है ए टैंक और ये है बी टैंक। ए टैंक में पानी का लेवल यहां तक है, ये यहां तक भरा हुआ है। लेट मी टेल यू दिस, दिस कॉक इज क्लोज। और बी टैंक में अगर आप देखोगे तो यहां तक है वाटर लेवल। ठीक है, ए टैंक का लेवल यहां तक है और बी टैंक का पानी का जो लेवल है वाटर का वो यहां तक है, और ये कॉक यहां पे बंद करके रखा है। बट सर्टेनली अगर हमने ये कॉक अगर खोल दिया तो पानी का बहाव कहां से कहां पे होगा? फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम बी टू ए, राइट, फ्रॉम बी टू ए। सो देयर इज अ फ्लो ऑफ वाटर, इट विल टेक्स प्लेस फ्रॉम द टैंक बी टू टैंक ए, और ये फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों वाटर टैंक में पानी का लेवल इक्वल नहीं होता है। यस, जब हो जाएगा इक्वल अपने आप ये जो है दैट फ्लो ऑफ वाटर ये चलता रहेगा। ओके, एट द सेम टाइम इफ वी कीप हॉट कप ऑफ टी इन अ कोल्ड, समझिए यहां पे अगर हमने कोई पॉट लिया जिसमें रखा है ठंडा पानी, और इसके अंदर हमने यहाँ पे रख दिया है हॉट कप ऑफ टी। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये है कोल्ड वाटर और ये है हॉट कप ऑफ टी। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे द हीट विल फ्लो फ्रॉम द कप टू द कोल्ड वाटर। तो ये जो है फ्लो ऑफ हीट it will be continue till the temperature level, or at the both the that water and tea of that both these things it will become same, the flow of heat it will continue in the same manner। अगर ए बी एक रॉड है और अगर ए का ज्यादा है इलेक्ट्रिक लेवल और बी का कम है इलेक्ट्रिक लेवल, तो क्या होता है? ए का अगर ज्यादा होता है इलेक्ट्रिक लेवल और बी का अगर कम होता है तो देयर इज अ फ्लो ऑफ द चार्ज टेक्स प्लेस। तो जहां पे होता है ज्यादा, जिसको हम लोग दिखाते हैं सिंबल पॉजिटिव, और जहां पे होता है कम जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। यहां पे ये जो है इलेक्ट्रिक लेवल उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So we can say electric level is nothing but electric potential। Potential at point A is high, मतलब क्या? इसका
ज्यादा है इलेक्ट्रिक लेवल और यहां का है कम, अगर दो पॉइंट आपके सामने है, एक का ज्यादा है पोटेंशियल, दूसरे का कम है, तो उन दोनों में क्या है, उन दोनों में होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा रैपिडली। ओके, नाउ वन मोर थिंग इज हियर। एक बात होता है, हमें देखा है सेल में भी होता लिखा होता है पॉजिटिव और होता है निगेटिव, यू नो दैट। So that positive means always having higher potential and negative means lower potential. So we can say here same, अगर आप देखोगे इसको, अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा एक बात, कौन सी, कि यहाँ पे जो रॉड है, रॉड इज हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड द सॉल्यूशन इज टोटली पॉजिटिवली चार्ज। तो जाहिर है यहाँ पे इस जंक्शन पे, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे भी क्या होगा, एक तरह का पोटेंशियल डेवलप होगा, एंड दैट इज नथिंग बट नोन एज अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो क्या है इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, the potential is get developed at the junction of the rod and its salt solution. That is called electrode potential. That is called electrode potential. Okay, so due to formation of electrical double layer, positive and negative layer, the potential is get developed at the junction, मतलब ये है junction of the rod and its salt solution, that is known as electrode potential. जैसे यहाँ पे होता है डी इलेक्ट्रोनेशन, आपको पता है कॉपर के बारे में, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे Cu2 plus ions they will gain 2 electrons। ये जो कॉपर के आयंस है ये कहां से आएंगे, ये आएंगे सॉल्यूशन में से, मे बी सपोज कॉपर सल्फेट से। तो Cu2 plus gain 2 electron and then there is a formation of Cu, obviously aqueous, और हम यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए मैं कहूंगा क्या है वर्ड, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेशन। डी मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इधर का जो केस है, कॉपर इज नथिंग बट हैविंग पॉजिटिव चार्ज। देखिए जैसे ही यहाँ पे जाएंगे Cu2 प्लस के आयंस, SO4 माइनस आयन पूरे सॉल्यूशन में यहाँ पे मौजूद होंगे, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है ये यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कॉपर के आयन तो यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएंगे, दे गेट डिस्चार्ज टू कॉपर। लेकिन जितना भी है सॉल्यूशन वो क्या रहेगा, सॉल्यूशन विल हैव नेगेटिव चार्ज। तो इधर भी क्या होता है, इधर भी होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो इन दोनों भी इलेक्ट्रोड्स के पास होता है पोटेंशियल, बट दिस पोटेंशियल इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहां पे क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। सो लेट मी rub this first of all, 1 second. So the next is here oxidation potential. Oxidation the potential develop due to oxidation half
a reaction is called as oxidation potential having symbol EOX. At the same time, reduction potential the potential developed due to reduction half reaction. For this, the symbol is, you know that, okay. Mostly we just take here the EMF of the cell. तो यहाँ पे क्या होता है EMF? EMF मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और वी कैन से इट एज सेल पोटेंशियल. इसके लिए सिंबल होता है E. सो EMF, yes, oxidation potential at anode plus reduction potential at cathode, इन दोनों से आपको मिलेगा EMF of the cell. But generally we take as standard values. So क्या होता है standard electrode potential. See, and for that देखिए, we can say there should be standard condition, and the condition is that the solution, I mean these solutions, they must have 1 molar concentration, then temperature should be equal to 298 Kelvin, room temperature, जो कि होता है 25 डिग्री सेल्सियस. अगर हम उसे लिखेंगे केल्विन में तो आएगा 298 केल्विन. प्रेशर जब भी यहाँ पे होगा 1 एटमॉस्फेयर, जो कि होता है नॉर्मल प्रेशर, मतलब इट इज टेकन एज स्टैंडर्ड. इन कंडीशंस में अगर हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं क्या है पोटेंशियल, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इसके लिए जो सिंबल है वो रहेगा E नॉट. यस, सो आई विल राइट हियर, अगर मुझे लिखना है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, द पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन व्हेन all the substances they are present in their standard state. और वो जो स्टेट है वो क्या है, वो है 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये जो है कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ, दिस इज नोन एज अ स्टैंडर्ड कंडीशंस. ओके, सो द पोटेंशियल दैट इज oxidation potential at the standard condition is known as standard oxidation potential. Reduction potential at these standard conditions, it is known as standard reduction potential. तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं. ओके, सेम डेफिनेशन को आपको लिखने का, लेकिन आगे सिर्फ ऐड करना होगा. सी फॉर एग्जांपल, suppose I want to write the definition of standard electrode potential, then I will write, due to formation of electrical double layer, the potential is get developed at the junction of the rod and its salt solution when all the substances involved are in their standard states. It's called as standard electrode potential. ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है क्या होता है स्टैंडर्ड, सो आई विल राइट हियर standard reduction
पोटेंशियल। जो सिंबल यहाँ पे मैं यूज करूंगा वो है ई नॉट रिडक्शन। सो yes, the potential develop due to reduction half reaction when all the substances involved are in their standard state, and this is known as a standard state. Temperature is equal to 298, pressure should be equal to 1 atmosphere, concentration क्या होना चाहिए solution का 1 molar. This is known as a standard reduction potential. Students, let me tell you one thing. जैसे हमें फॉर्मूला मिला है, in the same manner we can calculate here standard EMF also. तो E नॉट सेल में इसे कहूंगा, it is equal to yes E नॉट oxidation potential at anode plus E नॉट reduction potential at cathode. तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है yes E नॉट सेल, standard EMF of the cell. Okay, but as per the sign conventions, all the values they are only expressed in terms of standard reduction potential only. तो ये जो है standard reduction potential, it is generally mentioned everywhere. Even in the EMF series, different electrodes they are arranged. अगर आप देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, क्या है वो? EMF series. So पेज नंबर है 90, you can see the पेज नंबर 90. इसमें दिया है yes EMF series. But before that I will suggest you to note down these things properly in your notebooks. Now let's see here the next point, significance of E naught value. Students, let me tell you, as per the IUPAC sign convention, IUPAC, you know that reduction reactions they are generally assumed to calculate the standard electrode potential of any cell. इसीलिए जितने भी आपको दिए हैं वो सीरीज में वो सब के सब रिडक्शन रिएक्शंस ही दिए हैं, and that the values are expressed as standard reduction potential values. If you see carefully, जो भी टेबल आपके मतलब टेक्स्ट बुक में दिया है, it is nothing but EMF series, and all the values are nothing but here standard reduction potential values, and hence in all those reactions only gain of electrons is shown. Gain of electrons is shown. अगर आप देखोगे प्रॉपरली तो वहां पे जो वैल्यू है हाइड्रोजन के लिए, आई मीन फॉर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, द वैल्यू इज 0.0. यस, अगर आप देखोगे प्रॉपरली तो यहाँ पे H के लिए वैल्यू है 0, एंड द वैल्यूज दे विल स्टार्ट फ्रॉम हियर प्लस वैल्यूज. आई थिंक द फर्स्ट वैल्यू इज गिवन एज हियर 2.87, और अगर आप जाओगे मतलब इस तरफ द वैल्यूज दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉजिटिव. मतलब मैं यहां से ही कहूंगा कि यहां से पॉजिटिव, फिर दे आर बिकमिंग लेस पॉजिटिव, बिकमिंग 0, एंड जैसे आप यहां पे आओगे तो नीचे का वैल्यू मेरे ख्याल से है -3.05 वोल्ट. सो यू नो हाइड्रोजन से अगर आप नीचे आओगे so the values they are becoming more and more negative value. Students, more negative value. First of all, let me tell you here, negative value जो होते हैं ऐसे जो होंगे electrodes, they are nothing but the reducing agents. वो क्या होंगे यहाँ पे? reducing agents होते हैं negative values वाले. Okay, more negative values अगर है
तो वहां पे क्या होंगे, दे विल बी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी फॉर अल्कली मेटल्स, you know that present in the first A group, they are having more negative values for the electrode potential. That means they are nothing but the strong reducing agents. Okay. On the other hand, अगर values है ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, सो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है दे आर नथिंग बट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. वो यहाँ पे क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे. एंड मोर पॉजिटिव वैल्यू की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, मतलब वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, इफ यू सी फॉर फ्लोरीन जो यहाँ पे लिखा है, इट विल बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग agent. Okay, so in this way we can say overall this is nothing but the different E0 values. अगर आपको दिया है redox couple कोई भी, तो वो redox couple का मतलब E0 वैल्यू अगर आता है पॉजिटिव, ठीक है, हम कुछ इसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, डोंट वरी. तो क्या कहेंगे, दैट सेल डज एग्जिस्ट. ठीक है. अभी देखिए, मैं अगर आपको कहूंगा कि आप वहां पे आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एरोस को मेंशन करो, तो देखिए, एज वी मूव डाउन यू हैव टू राइट हियर इंक्रीजिंग स्ट्रेन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. और जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको लिखने का है यहां पे इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कुछ इस तरीके से यहां पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और ये है एज वी मूव अपवर्ड देन इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. तो इस पर हमें किस तरह के आते हैं न्यूमेरिकल्स, कुछ एग्जांपल हम देखेंगे, फिर हम आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म करेंगे. सो जस्ट आई विल से नोट डाउन दिस थिंग. यहाँ पे आप लिख लो, आपके टेक्स्ट बुक में भी इस तरीके से आरो अगर दिखाई देंगे तो आपको समझ में आएगा प्रॉपरली. Okay, suppose now we have given the problem like this: predict whether the reactions are spontaneous or not by using that EMF series given to us. First one हमें यहाँ पे जो दिया है वो है Fe3+ and I- के बीच में. Students, let me tell you, standard EMF of cell is equal to standard oxidation potential at anode plus standard reduction potential at cathode. ठीक है. बट जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, as per the IUPAC sign convention, all the values are always given in any exam, and that values will be only of reduction potential. मतलब हमें इसकी जगह पे रिडक्शन का वैल्यू लिखना होगा. ओके, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन, मुझे यहाँ पे एनोड पे ही होने वाला रिडक्शन का वैल्यू लिखना होगा. एंड रिमेंबर वन मोर थिंग हियर, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड इज इक्वल टू माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड ओनली. वैल्यू क्या होगा, सी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड ओनली. व्हाई दिस वन इज देयर, क्योंकि हमें जो भी वैल्यूज देंगे वो हमेशा रिडक्शन के ही वैल्यूज होंगे. तो मैं इस जगह पे क्या लिखता हूं, अब ये लिखूंगा
सो देखिए अभी ये मैं यहाँ पे करता हूँ रिप्लेस, तो क्या आएगा? सो आई विल राइट हियर माइनस ई नॉट रिडक्शन एट एनोड, और ये क्या लिखा मैंने? ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड, जो पहले से ही यहाँ पे है मौजूद। चलो तो फिर ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको लिखता हूँ, बाद में मैं इसे लिखूंगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड माइनस ई नॉट reduction at anode, and this is the formula that we have to remember. क्या किया मैंने? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कन्वर्ट किया रिडक्शन पोटेंशियल में। रिमेंबर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको दिया है ये प्रॉब्लम, इसमें आपको दो वैल्यूज पेपर में भी आपको ये वैल्यूज दिए होंगे, डोंट वरी। आपको देखना है कि इन दोनों में से नेगेटिव वैल्यू कौन सा है। एक वैल्यू नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो जहां पे होगा नेगेटिव वैल्यू डेफिनेटली वहां पे होता है ऑक्सीडेशन, जो वैल्यू होता है पॉजिटिव वहां पे होता है रिडक्शन। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो वैल्यूज तो नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर एक काम कीजिए, देखिए कि कौन सा वैल्यू कम है पोटेंशियल का, तो ये वैल्यू यहाँ पे कम है। जो वैल्यू कम होगा वहां पे होगा ऑक्सीडेशन, तो मतलब ये है ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है? ये है ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपको क्या दिया है? वो है 0.54, लेकिन कौन सा वैल्यू है वो? यस, दिस वैल्यू वी हैव टू टेक। अभी यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? आपके टेक्स्ट बुक में इस वैल्यू को कर दिया है नेगेटिव। हमको यहाँ पे नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख के रखा है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, फिलहाल अभी पहले हम इस इक्वेशन को लिखते हैं नीचे। सो देखिए यहाँ पे, देखिए ये है दो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ही है। मैंने बोला था आपको कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। तो मुझे यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो इधर भी यहाँ पे आएगा 0.77 इंटू 2 7s are 14, 2 7s are 14 प्लस 1 15, 200, यहाँ पे आएगा 1.54 वोल्ट्स। चलो फिर क्या आता है वैल्यू हमारा? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन एट कैथोड। कैथोड कौन सा है? जहां पे क्या होगा, मैंने बोला था आपको, यस रिडक्शन होता है। कैथोड रिडक्शन, एनोड ऑक्सीडेशन। तो ये है कौन सा वाला रिएक्शन? दिस इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन, एंड ये है रिडक्शन वाला रिएक्शन। तो ये जो है फॉर्मूला, चलिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ई रिडक्शन एट कैथोड कौन सा वैल्यू है वो? यस, इसका क्या पोटेंशियल दिया है आपको? वो वैल्यू है 1.54 माइनस ई रिडक्शन एट एनोड। अभी यहाँ पे हमें निगेटिव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये चेंज करके रखा है। वो जो दिया है मेथड इज डिफरेंट। 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें अगर प्रॉपर तरीके से सीखना है तो आपको ये तरीका ध्यान में रखना होगा। तो क्या दिया है वैल्यू इसका? ओके, क्योंकि हमने रिडक्शन के ही वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे हमें इसको रिवर्स करना जरूरी नहीं है। तो ये है 0.54 ही। तो 1.54 माइनस 0.54 क्या आएगा वैल्यू हियर? 0 यस, वैल्यू इज कमिंग टू बी ई नॉट सेल वैल्यू इज कमिंग टू बी 1 वोल्ट। और अगर आप देखोगे तो वैल्यू कैसा है? वैल्यू इज पॉजिटिव। इसका मतलब द सेल इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब अगर आपने सेटअप लगा दिया, सेल अपना काम करता रहेगा, एनर्जी आपको देता रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस। ओके, so in this way we have to remember cell is spontaneous. Spontaneous means मतलब क्या होता है? The cell does exist and can give you energy continuously. अगर यहाँ पे E नॉट सेल का वैल्यू आता है नेगेटिव, the cell is non spontaneous. दो वैल्यू अगर आपको दिए हैं, लोअर वैल्यू पे क्या होगा? हमेशा ऑक्सीडेशन वाला होगा, और जो होगा हायर वैल्यू वो होगा रिडक्शन वाला।
दो वैल्यू दिए हैं, एक वैल्यू निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो जो है निगेटिव वहां पे होगा ऑक्सीडेशन और जो है पॉजिटिव वहां पे होगा रिडक्शन। अगर आपने ये ध्यान में रखा तो आपको ये बहुत इजी हो जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से आज हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। इफ पॉसिबल वी विल टेक वन मोर लेक्चर एंड आई विल अगेन एक्सप्लेन यू दिस थिंग्स इफ नीडेड। अदरवाइज ज़रूरत नहीं है वैसे हमें, बिकॉज द मेन चैप्टर इज देयर इन द 12th स्टैंडर्ड। वी हैव इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन दैट वी विल गो इन डिटेल्स अबाउट दिस। फिलहाल जो भी यहाँ पे चैप्टर आपको दिया है, मतलब जो भी मैंने आपको सिखाया है, आपको वही बस फोकस करना है। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ओके। एट द सेम टाइम आई विल गिव सम होमवर्क also from this chapter that you have to solve. Assignments I have already given to you that you have to solve it properly within 4 to 5 days. Okay, take care, goodbye, see you in the next lecture.